हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का डायटन क्लासेस के पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ बेसिक मीडियम में कैसे फाइंड करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेक्चर नंबर 10 में हमने सेम मेथड ही पढ़ा था, बट उसके साथ हम उसके अंदर हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें हमने मीडियम एसिडिक लिया था। आज बेसिक मीडियम में ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद मी एंड ज्वाइन मी। सो क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस IO3 negative. This is called iodate. Okay, what is this? This is called chromium hydroxide. What is this? This is called iodate. Okay, it will give in the question product is iodide I negative plus second product is chromate ion. Chromate ion is CaRO4 2 negative. What is this? This is chromate ion. So this is your reaction, and it is given that this reaction occur in basic medium. So this is your reaction, and they are asking to balance this equation by which method? By oxidation number method. Okay students, so first of all, before starting the balancing of this reaction, I will tell you about these reactants. About these reactants, one is very much important, and this is IO3 negative. This sign is called, as I write here, iodate. This is called iodate. And how iodate forms? What is this? It is the conjugate base of iodic acid. What is iodate? Iodate is the conjugate base of iodic acid. And what is iodic acid? Iodic acid is HiO3. This is iodic acid. Okay. How will iodate formed? Iodate is a conjugate base of iodic acid, and iodic acid is HiO3. Iodate is IO3 negative. The question arises here, what is conjugate acid, what is conjugate base? So now first of all we will discuss about these, what are conjugate acid and conjugate bases. Then after doing this, we will start the balancing of this equation by oxidation number method in basic medium. So before starting that, it is very much necessary to impart some information regarding IO3 negative and what are conjugated acid and conjugate bases. Okay students, so let's start. So first of all, conjugate acid. What is conjugate acid? It is a chemical compound. It is a chemical compound formed by the reception of a proton. Formed by the reception of a proton. What is proton here? Proton is H positive ion is called proton.
by the base, by a base. Okay, so what is conjugate acid? Conjugate acid is nothing, it is just a chemical compound. How it formed? It formed by the reception of a proton by a base. किसी भी अदर कंपाउंड से जब कोई बेस प्रोटॉन को रिसीव कर लेता है, आफ्टर रिसीविंग प्रोटॉन, दैट बेस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? कंजुगेट एसिड. सो व्हाट इज कंजुगेट एसिड? कंजुगेट एसिड इज एक्चुअली व्हाट इज इट? It is a base. What kind of base? When it receive proton from other compound. So this is base plus proton. This is called conjugate acid. I hope आपको understood हुआ थोड़ा सा. So second one is conjugate base. तो जो केमिकल कंपाउंड प्रोटॉन को लूज करेगा, डोनेट करेगा, तो डोनेट करने के बाद जो केमिकल कंपाउंड बचता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस. ओके, सो नेक्स्ट इज कंजुगेट बेस. सो व्हाट इज कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस इज अ केमिकल कंपाउंड. कंजुगेट बेस is a chemical compound formed after an acid has formed after an acid has donated a proton, has donated a proton during a chemical reaction. What is proton? H positive ion is called proton during a chemical reaction. So during a chemical reaction. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज कंजुगेट बेस? कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो प्रोटॉन रिसीव करता है, और बेसिकली प्रोटॉन कौन रिसीव करेगा? बेस. हम एक थ्योरी पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ते हैं एसिड बेसिस के रिगार्डिंग. ठीक है, उस थ्योरी के अंडर क्या आता है? व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर दोज विच डोनेट प्रोटॉन्स एंड व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर दोज कंपाउंड्स विच एक्सेप्ट प्रोटॉन. तो बेसिकली जो प्रोटॉन है वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा? बेस के बाद. तो जब बेस कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो वो वाला बेस फिर वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड अ कंजुगेट एसिड. तो जो आपका कंपाउंड डोनेट कर देगा प्रोटॉन, बेसिकली जो डोनेट करेगा वो क्या होगा? दैट इज अ एसिड. तो एसिड जो डोनेट करने के बाद बच गया, एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बच गया, that chemical compound is called conjugate base. I hope आपको अंडरस्टूड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, सपोज देयर इज एन एसिड प्लस देयर इज अ बेस. So what will happen now? You know that acid lose proton and base accept proton. So what will form now? Suppose I write here a conjugate base plus I write here conjugate acid. Okay. Now what will happen? You know that this acid will donate proton. After donating proton, what will form? It will form a conjugate base. You know that a chemical compound after donating proton, that left part is called conjugate base. तो acid ने proton donate कर दिया, तो donate करने के बाद क्या बचेगा उसका? conjugate base. So this is called conjugate acid base pair.
ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें बेस की, तो जो एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया वो इस बेस ने एक्सेप्ट किया है, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड। ओके, सो हियर व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आई होप अंडरस्टूड हो रहा है। अब देखो यहां पर कोई भी कंजुगेट बेस है तो जब वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। कोई भी आपका कंजुगेट एसिड है, जब वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा क्या बन जाएगा, वो बेस बन जाएगा। आई होप अंडरस्टूड हो रहा है। सो दिस इज द कंजुगेट एसिड बेसिस पेयर्स। तो फाइनली अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, व्हाट वी विल डू इन स्टेप नंबर 1, आप सभी को पता है कि जो स्केलेटन इक्वेशन होती है वो लिखते हैं, प्लस उनके इंडिविजुअल एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो पहले मैं स्केलेटन इक्वेशन लिखता हूं, क्या है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट, it will form iodide plus chromate ion, that is CrO4 नेगेटिव। अब मैं इंडिविजुअली हर एटम का यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा, फिर जहां पर अकेले एटम्स के ऊपर लिखूंगा, इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर। फर्स्ट हम ये चूज करते हैं CrOH थ्राइस, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ठीक है। सो यू नो दैट ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2, H हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पर Cr का फाइंड करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। सो Cr का हमने x मान लिया, x प्लस फिर आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना आता है, -2 अभी लिखा, कितने हैं ऑक्सीजन, बाहर 3 लिखा, इट मीन्स 3 है, प्लस थर्ड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए कितना लिखा है अभी, ऑक्सीडेशन नंबर +1 मल्टीप्लाई, कितने हाइड्रोजन है, बाहर 3 लिखा है, इट मीन्स देयर आर 3 हाइड्रोजन्स। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट व्हाट वी, और ओवरऑल चार्ज की बात करें तो बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओवरऑल चार्ज कुछ भी प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज कितना लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस -6 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो इसके बाद क्या आएगा आपके पास, x -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 3 के -3 इज इक्वल टू 0। x माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू +3। x क्या माना हुआ है, किसका, ऑक्सीजन नंबर क्रोमियम का। सो इसको हमने मान लिया था x, ऑक्सीजन का -2, H का +1। तो सारे को फाइंड करके क्रोमियम में कितना आ गया अभी, इट इज +3। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीजन का -2, H का +2। स्टूडेंट्स कुछ का आपको लर्न करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर आपको एक का ही फाइंड कर सकते हो, बाकी का आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई द सेकेंड वन। सेकेंड एटम इज कंपाउंड इज आयोडेट, IO3 negative. Actually iodates are the class of compounds. Different compounds occur in this class like sodium iodide etc, many other. So in iodide you know that oxygen has oxygen state -2, I का हमने मान लिया, लेट्स I is equal to I की ऑक्सीजन x मान ली। सिमिलरली यहाँ भी लिख देता हूँ मैं आपको कि हमने क्रोमियम की कितनी मानी थी, क्रोमियम की हमने x मानी हुई इसमें, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू फाइंड इट। तो I है, पहले I का x लिख दिया, प्लस फिर है O का कितना होता है माइनस, इंटू कितने हो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू, फिर उसके इक्वल टू के बाद हम यहाँ पर ओवरऑल चार्ज लिखते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं होल स्पीशीज के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना है, दिस इज -1। सो x प्लस 2 3 -6 is equal to -1. So what will happen now, x -6 is equal to -1, x is equal to
-1, ये -6 है, उस साइड हम लेंगे ये बन जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गए, कितने आ गई +5। प्लस माइनस का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये देखना है आपने प्लस माइनस। तो यहाँ पर आयोडेट के केस में आयोडीन के ऊपर आ गया आपका +5 ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन की तो हमें पता ही है दैट इज -2। अब इस एलिमेंट्री फॉर्म में माइनस लिखा हुआ, तो इट मीन्स ये -1 है। अब क्रोमेट आयन में फाइंड करेंगे अभी हम, थर्ड इज क्रोमेट। ओके, तो क्रोमेट के लिए क्या करेंगे अभी हम, क्रोमेट का क्रोमियम का मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होती है ऑक्सीजन स्टेट, ट्राई टू फाइंड इट। ओवरऑल चार्ज कितना -2। अब पहले Cr है, तो Cr के लिए हमने x माना हुआ, x प्लस O है, फिर O के लिए -2 मल्टीप्लाई कितने हुआ है 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, सबसे बाहर कितना चार्ज है, जितना ओवरऑल चार्ज है -2 लिखना। अगर बाहर कोई भी चार्ज नहीं दिया ओवरऑल, तब हम 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेयर x प्लस -8 आ गया मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -2 x -8 इज इक्वल टू -2, इसको साइड ले गए हम, x -2, ये -8 है +8 हो गया, एंड x इज इक्वल टू +6। ओके, तो इस केस में क्रोमेट के केस में क्रोमियम के ऊपर चार्ज आ गया +6, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता ही है इट इज -2। तो ये हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टेप 1 में हमने हर कंपाउंड के इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर्स भी स्टेट फाइंड कर लिए और इंडिविजुअली लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम चेक करेंगे कि कितने का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो नो स्टेप नंबर 1 में ही करते हैं इसको हम, या 2 में कर लेते हैं, एनी हाउ 2 में करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है, प्लस कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जिस स्पीशीज की रिडक्शन होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। आई होप आपको पता है ये चीज़ें, वी डिस्कस इट, हमने किया डिस्कस सारा ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर पहले चेक करते हैं क्रोमियम का। देखिए यहां पर +3 से +6 होगा। यू नो दैट कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वाली साइड जाएगा तो वो इंक्रीज करेगा, प्लस वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाफ फ्रैक्शन होती है वो, और ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर गोज फ्रॉम 0 टू प्लस साइड जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। ओके, अब कितने का हो रहा है हमने वो चेक करना है। तो यहां मैं लिखता रहूं, पहले लिख देता हूं व्हाट हैपन हियर, ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कितने का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑलवेज इंक्रीज होगा। सो +3 से +6 चला गया है, तो कितने का हो रहा है फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब इफ नॉट क्लियर देन आई विल राइट हियर +3 +4 +5 +6। ठीक है जी, इस Cr का था आपका +3, इस Cr में प्रोडक्ट में क्रोमेट आयन में बन गया आपका +6। अब देखना है हमने कितने का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में ऑलवेज ऑक्सीडेशन में ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है 1, 2 एंड 3। सो कितने का इंक्रीज हो रहा है, टोटल इंक्रीज 3 का आ रहा है बाय ईच एटम। यहाँ पर Cr सिर्फ एक ही है तो हम टोटल बोलेंगे यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इंक्रीज्ड बाय 3 पर एटम। एक एटम का 3 से बढ़ रहा है, यहाँ पर है भी एक ही, टोटल भी यही होगा 3 ही होगा। ठीक है,
सो एक तो हमने फाइंड कर लिया ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो क्रोमेट आयन फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि +3 से +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वाली साइड बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पर +3 था, यहाँ पर +6 हो गया, प्लस वाली साइड बढ़ रहा है, +2 +3 +4 +5 +6। जब भी ऐसा हो तो वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन हो गई। अब हमने सेकंड चेक करना है रिडक्शन किसकी हो रही है। रिडक्शन में क्या आता है आपको पता है, इन रिडक्शन व्हाट हैपन इन रिडक्शन, इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस साइड, प्लस से माइनस वाली साइड जाता है। तो चेक करिए यहाँ पर देखिए आयोडीन का यहाँ पर +5 है, यहाँ पर आयोडीन का कितना हो गया, -1 हो गया। तो इट मीन्स आयोडाइड की क्या हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। आई होप अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अभी, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन अक्कर हेयर, एंड कितने का आ रहा है इसका डिक्रीज, अब वो चेक करते हैं। पहले लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितने एटम का, वो भी लिखूंगा, दिखाता हूं आपको पहले। तो +5 से -1 चला गया। ओके, तो उसके लिए अब चेक करते हैं कितने का हुआ है। तो पहले पीछे को आएंगे, अब लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड जाना है। +5 से -1, तो यहां मैं लिख रहा हूं +5, यहां आ गया आपका +4, यहां आ गया +3, यहां आ गया +2, यहाँ आ गया +1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया माइनस। तो इस साइड को हमेशा क्या होगी, जब ऐसे होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलेंगे, नेगेटिव वाली साइड जा रहा है। तब चेक करते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने का हो गया यहाँ पर। सो इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि माइनस वाली साइड जा रहा है, डिक्रीज बाय कितने का, 6 पर एटम। तो यही चीज मैं यही लिखूंगा अभी। तो क्या लिखा, ऑक्सीजन नंबर डिक्रीजेस बाय 6 पर एटम। आई होप इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया है। तो ये हमने कर लिया स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 3 में अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 व्हाट वी विल डू इन दैट स्टेप, एक्चुअली अब हमने इक्वेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसको हमने इक्वेट करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इसमें आप पहले चेक कीजिए कितने का इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो अभी हम करेंगे स्टेप नंबर 3। सो यहां मैं लिख रहा हूं इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय कितना हुआ, अभी लिख के आता हूं मैं यहां पर, इट इज 3 बाय 3 पर एटम, इंक्रीज बाय इक्वल टू साइड लिखता हूं, इंक्रीज बाय 3 पर एटम। ठीक है, ऐसे डिक्रीज को लिखता हूं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय, डिक्रीज कितने का आ रहा है और भी फाइंड किया यहां पर, यहां भी आपको बताया करके 6 का, बाय 6 पर एटम। इन लेक्चर नंबर 10 मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है तो कैसे इक्वेट करेंगे, जो कम है दोनों को इक्वल करने के लिए जो रेक्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक इंक्रीज 3 का हो रहा है, डिक्रीज 6 का हो रहा है, अब ये तो 6 है, इसको भी 6 बनाना है, तभी इक्वल होंगे ना, इक्वेट करने हैं। तो 3 को 6 कैसे कर पाएंगे हम, अगर इस वाले रेक्टेंट को क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आ गया ये, इक्वल टू 6। तो ये चेक करना है इंक्रीज किसका हुआ था, इंक्रीज ऑलवेज ऑक्सीडेशन में होगा। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले रेक्टेंट को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। अब 6 को तो 6 ही बनाना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो डिक्रीज किसका हो रहा है, अब यहाँ से चेक करेंगे, रिडक्शन में डिक्रीज होगा, लिखा डिक्रीज, इसका डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप 3 में अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि यहाँ पर
3 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज टोटल 6 का हो रहा है। 3 को 6 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। ये याद रखना है ऑलवेज, रेक्ट हैंड साइड जब भी ऑक्सीजन नंबर को इक्वेट करना है मल्टीप्लाई रेक्टेंट्स को ही करनी है, ठीक है, उस साइड नहीं करनी है। सो लेट्स, तो अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट IO3 नेगेटिव, इट विल गिव आयोडाइड I नेगेटिव प्लस क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर ऊपर इनके नंबर नहीं लिख रहा, ऑक्सीडेशन नंबर सीधा बैलेंस करूंगा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी, 2 के साथ, तो इसलिए आगे लिख दिया 2। और जिसका डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज रिडक्शन में, इसको किसके साथ करनी मल्टीप्लाई, 1 के साथ। यहाँ मैं 1 लिखूंगा, 1 लिखा, इट डजंट मीन नथिंग, तो यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा। ओके, तो ये तो हमने कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट कर लिया हमने स्टेप नंबर 3 में। नाउ आगे स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 4, नाउ इन स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, इन दोनों के एटम्स को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम स्टेप नंबर 3 वाली इक्वेशन लिख लें, क्या आई थी हमारे पास, सॉरी यहां पर 2 लिखा था हमने, 2 ट्वाइस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट IO3 नेगेटिव, it will give iodide plus product second is chromate। ओके, सो अभी हम स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, O और H को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर O और H को छोड़ दें तो कौन कौन से एटम बच गए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और H को छोड़ देना है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रेक्ट हैंड साइड। कौन कौन से हैं, O को नहीं लिखना है, H को नहीं लिखना, एक क्रोमियम है और एक आयोडीन है। ओके, ऐसे ही मैं अगर बात करूं प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड, तो जहां पर O और H के अलावा क्या क्या है, I है और Cr है। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे हम, Cr चेक करें कितने हैं। Cr यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ, ये स्पीशीज OH3 है, ये 3 सिर्फ O और H के लिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ OH है, Cr नहीं है। Cr के आगे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, आगे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स 2 1 2, क्रोमियम 2 हो गए, यहाँ पर क्रोमियम 2 है। आयोडीन के आगे, यहाँ पर O के आगे 3 है, बट आयोडीन के आगे कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पर आयोडीन ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसे O4 है बट Cr 1 है, तो इसको 3 करना है, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन कितने हैं, 1 है, इस साइड सॉरी क्रोमियम कितने हैं, 1, इस साइड क्रोमियम 2 है, और 1 को 2 करना है तो मल्टीप्लाई किस साइड करना पड़ेगा, इसको 2 के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या करेंगे हम, फिर क्रोमेट को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो एज जो क्रोमियम है दोनों साइड इक्वल हो जाए, क्रोमियम इस साइड भी 2 होगी और इस साइड भी 2। आयोडीन ऑलरेडी 1 है, आप चेक कीजिए, क्रोमियम 1 है, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 सॉरी क्रोमियम 2 है, आयोडीन 1 है, आयोडीन 1 है। ओके फ्रेंड्स, so this is your step number 4. Now step number 5. Now what we do in step number 5? Step number 5 में हम फाइनली क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के क्या मेथड्स हैं, वो डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। अगर तो आपका एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड डेफिशिएंट है उस साइड H पॉजिटिव ऐड करते हैं। बट अभी आपको बेसिक मीडियम दिया गया है, तो बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। पहले मैं लिखता हूं बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी पहले ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है वो लिख रहा हूं मैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस साइड आपका ऑक्सीजन कम है उस साइड हम OH नेगेटिव ऐड करते हैं। आई होप अंडरस्टूड है। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम
बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड OH नेगेटिव आयन टू द डेफिशिएंट साइड, टू द डेफिशिएंट साइड ऑफ, किसके लिए, टू द डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके तो चेक करिए यहां पर, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 वाली स्टेप वाली इक्वेशन लिखूंगा। अभी स्टेप 4 वाली इक्वेशन क्या है, ट्वाइस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट IO3 नेगेटिव, इट विल गिव आयोडाइड प्लस सेकेंड प्रोडक्ट इज 2 क्रोमेट आयन 2CrO4 2 नेगेटिव। ओके सो अभी क्या देखा मैंने यहाँ पर, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पहले। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव ऐड करने हैं, तो पहले चेक करिए ऑक्सीजन कितने हैं। तो करता हूँ अभी चेक में ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ऑक्सीजन के लिए, यही करता हूँ। ओके सो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। तो स्टेप नंबर 5 के अंदर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया आपको, जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड हमने OH नेगेटिव आयंस ऐड करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्टेप नंबर 4 वाली इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन दोनों साइड। ये लिख ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख ली मैंने राइट हैंड साइड, मींस रेक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रेक्टेंट की होगी और राइट हैंड साइड ऑलवेज प्रोडक्ट की होगी। ऑक्सीजन देखना है सिर्फ ओनली। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन एक, इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, इधर भी कुछ नहीं है, बाहर 3 लगाओ, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर ये 3 पूरे का है। ठीक है, तो O1 बाहर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 3, ये 3 ऑक्सीजन होगी, यहाँ भी O3 लिखा हुआ है, IO3 में भी ऑक्सीजन कितनी होगी 3 ऑक्सीजन होगी। टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी फिर O इज इक्वल टू 3 + 3, दोनों राइट हैंड साइड ऑक्सीजन होगी आपकी 6। ठीक है, यहाँ पर तो आपकी 3 होगी, 3 के आगे भी लगा हुआ है 2, मतलब पूरा होल कंपाउंड, पहले तो ये ब्रैकेट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये होल कंपाउंड 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मैंने 1 × 3 लिखा है वो ब्रैकेट के लिए है, ब्रैकेट के बाद जो 2 है उसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर लिख दिया 2, कितना हो गया 3 × 2 = 6, तो टोटल कितनी होगी फिर 6 + 3, टोटल ऑक्सीजन जो है राइट हैंड साइड वो 9 आ गए। ऐसे प्रोडक्ट साइड भी चेक करने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, O के आगे यहाँ 4 लिखा हुआ है बट होल कंपाउंड के आगे 2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी, वैसे 4 है बट होल कंपाउंड के आगे 2 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 8। इस साइड ऑक्सीजन 9 है, प्रोडक्ट साइड 8 है। अब 8 को 9 करना है तो एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, इस साइड एक OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ ये चीजें। ठीक है, अब हम करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन एटम को। बैलेंसिंग ऑफ H एटम। तो H एटम जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं उसको बेसिक मीडियम के अंदर कैसे बैलेंस करते हैं। इन बेसिक मीडियम H एटम इज बैलेंस्ड बाय एडिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। Okay, by adding 1 molecule of H2O where H is deficient, H means hydrogen,
where H is deficient and simultaneously add same number of OH negative ions to the opposite side. To the opposite side. ओके, तो H को बैलेंस करने के लिए जिस साइड H कम है उस साइड आपने H2O ऐड करना है, ठीक है। और जितने H2O ऐड करने हैं एक साइड, दूसरी तरफ उतने ही आपने OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये देखना है आपने, फॉर रिमेंबर इट, फॉर ईच H एटम, हर H एटम के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे, ऐड 1 H2O मॉलिक्यूल। अब ये नहीं देखना आपने कि एक H के लिए है तो 2 H के लिए हम H2O ऐड कर देंगे, नहीं। अगर एक H की कमी है, 1 H मीन्स H2O, 2 H मीन्स कितने H2O, 2 H2O, 3 H मीन्स कितने H2O, 3 H2O एंड सो ऑन। मतलब कि अगर एक हाइड्रोजन का एटम कम है तो उसको कंप्लीट करने के लिए उस साइड आपने एक मॉलिक्यूल ऐड करना है वाटर का, ठीक है। तो अभी हम वही करेंगे। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, सो स्टेप नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है। मैंने समझा दिया, दोबारा लिख रहा हूं यहां पर कि H को बैलेंस करने के लिए फॉर ईच H वी विल ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O and same number of, मतलब सेम नंबर, अगर एक H2O ऐड किया है तो एक ही OH नेगेटिव, एंड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइंस टू द अपोजिट साइड। आई होप अंडरस्टूड है। अभी करके देखेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं स्टेप नंबर 5 में जो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद इक्वेशन आई थी वो लिखूंगा अभी। तो क्या आई थी, ट्वाइस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडेट, इट विल गिव आयोडाइड प्लस ट्वाइस क्रोमेट आयन, प्लस हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव ऐड किया था इस साइड। तो इस साइड 8 ऑक्सीजन थी, सॉरी इस साइड 9 ऑक्सीजन थी, इस साइड 8 थी, तो 8 को 9 करने के लिए एक OH नेगेटिव ऐड कर दिया। अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। अभी मैं फिर यहाँ पर थोड़ा हिट एंड ट्रायल लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं अंदर कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाद 3 लिखा हुआ है, तो 1 into 3। H के लिए क्या लिखेंगे, 1 into 3, कितने H आ गए यहाँ पर, 3H। होल कंपाउंड के बाहर भी 2 लिखा, तो ये होल कंपाउंड सभी के लिए होगा। 3 into 2 कितने हो गए, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ तो है नहीं कोई भी। प्रोडक्ट साइड की बात करें तो इन प्रोडक्ट साइड ओनली देयर इज 1 OH नेगेटिव, तो यहां पर 1 है, ओनली 1 H। तो अब क्या करना पड़ेगा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 6 हाइड्रोजन है जहां पर 1 है। अब कितने कम है, 6 - 1 5 कम है, तो हमें यहां पर +5 क्या ऐड करने पड़ेंगे, H2O मॉलिक्यूल। किस साइड, राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, +5 H2O। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने हमने H2O ऐड किए हैं सेम नंबर हमने दूसरी साइड क्या करने, अब इस साइड 5 H2O ऐड किए हैं तो इस साइड हमने 5 क्या ऐड करने हैं, OH नेगेटिव आयन। ओके, तो
अभी आप चेक कर सकते हो कि बैलेंस इक्वेशन हुई है कि नहीं, क्योंकि ये फाइनल स्टेप होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो अभी फाइनली बैलेंस हो चुकी है ये, अब वो चेक करेंगे हम। अब थोड़ा सा पहले चेक करने, फाइनल वेरिफिकेशन करने के लिए इससे पहले एक स्टेप और करेंगे। अगर दोनों साइड कुछ सेम चीज़ें हैं उसको कैंसिल आउट कर देंगे। लाइक यहाँ पर 5 हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो यहाँ से कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे फिर, फाइनली हमारे पास आएगा, दिस इज लास्ट स्टेप, पांच थे, 5 की जगह हमने कितने लिख दिए, 4 लिख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 थे, यहाँ 1 थे, कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों साइड। अगर इक्वल चीजें पड़ी हैं तो कम कर देंगे उनको हम। तो फाइनल स्टेप में ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब फाइनली हम इसको चेक कर लेंगे एक बार कि ये बैलेंस हुई है कि नहीं हुई बैलेंस। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गई आपकी प्रोडक्ट साइड। तो पहले से स्टार्ट कर देंगे सी आर से। सी आर कोई नहीं, यही है सिर्फ, इसके आगे कुछ नहीं है, 2 लिखा हुआ है। पहले 1 है तो 1 × 2 कितनी आ गई, 2। प्रोडक्ट साइड सी आर, ये है सी आर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1, कंपाउंड के आगे 2 लिखा हुआ है, 2 कितना आ गया, 2। सेकंड चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अंदर 1 है, बाहर 3 है, 1 × 3 कितना आ गया, 3। बट बाहर भी लिखा हुआ है, कितना आ गया, 2 कितना आ गया, 6। एक ये ऑक्सीजन, एक यहाँ भी है ऑक्सीजन, कितने हैं, 3। एक यहाँ भी है ऑक्सीजन, कितने हैं ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 × 4 कितने आ गए, 4। तो टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए इस केस में, सो देयरफॉर O एटम्स कितने आ गए, देयरफॉर O = 6 यहाँ से आए हैं, +3 यहाँ से आए हैं, +4 यहाँ से आए हैं, कितने आ गए फिर, 6 3 9, 9 4 कितने आ गए, 13। ओके अब उस साइड चेक करते हैं, ऑक्सीजन 13 होंगे तभी इक्वेशन आपकी बैलेंस हुई होगी ये। तो ऑक्सीजन ए यहाँ पर है ऑक्सीजन आपके पास, तो इसके आगे 4 लिखा हुआ है, कंपाउंड के आगे भी 2 है, 4 2 = 8। एक ये है ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, पूरे कंपाउंड के आगे कितना लिखा है, 5। अब टोटल हम अगर चेक करें ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पर, 8 + 5 कितने हो गए, 13। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। क्रोमियम भी बैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। लास्ट में अभी आपके पास क्या बच गया है, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब पहले आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन, आयोडीन की बात करें तो एक यही है आयोडीन, इसके आगे कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ 1। इस साइड आयोडीन भी ओनली 1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट वन इज हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन को चेक करते हैं लास्ट में अभी हम। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ 3 है, बाहर 2 है, 3 2 = 6 +4 ये 10 है। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, खोल के लिखता हूँ, 3 × बाहर 2 है, 2 कितने आ गए, 6। एक ये H और H कहाँ पर है, AH 1 × 4 कितने आ गए, 4। तो टोटल H कितने आ गए फिर इस केस में, 6 ये हैं +4 ये हैं, 6 + 4 कितने आ गए, 10। अब हमने ऐसे उस साइड भी चेक करने हैं H एटम्स। तो उस साइड कितने आएंगे H, तो यहाँ पर ये है 2 लिखा है, 2 के आगे 5 है, मल्टीप्लाई जाएगा, सिंपल, वेरी गुड, वेरी सिंपल। 2 × 5 कितने आ गए, 10। तो ये आपके H भी बैलेंस हो गए। रेक्ट हैंड साइड H 10 है, प्रोडक्ट साइड भी H कितनी है, 10 है। आई होप आपको आंसर पता लगा होगा। फाइनली ये हमारे पास स्टेप नंबर 5 में एक बैलेंस्ड केमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है। किस मेथड के साथ हमने किया अभी, वी हैव डन इट विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और कौन सा मीडियम था, बेसिक मीडियम। इस मीडियम में आपने जो चीज़ याद रखनी है, जो थिंक आपको रिमाइंड रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, वो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात है। दोबारा यहाँ रिमाइंड करा रहा हूँ,
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीजन इन बेसिक मीडियम, ओके, इन बेसिक मीडियम वी जनरली ऐड OH नेगेटिव आयंस। जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड हमने OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं, ओके। एंड टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, जिस साइड आपके हाइड्रोजन कम है उसके लिए हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे। फॉर ईच H एटम ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O and same number of OH negative ions on the other side, जो दूसरी अपोजिट साइड होगी। सो ये चीज यहां पर याद रखने वाली है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड OH नेगेटिव ऐड करने हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड हाइड्रोजन कम है हर H के लिए एक H2O ऐड करना है, और जितने H2O ऐड करने हैं उससे दूसरी तरफ हमने उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं। ये यहाँ पर फोकस करने वाली बात है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अंडरस्टूड हुआ है। सो प्लीज कमेंट ऑन टुडेस लेक्चर एंड ऑल्सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब Dalton classes. Once again, thanks to watch this video.